Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Today we'll have the Hindu analysis dated 25th September 2021. So, let's start today's discussion. The first article states that India rejects China's accusations on clash. 20 soldiers had died in the border incident. Now, speaking of its background of this article, it is basically stating that on Thursday or on Friday, China's minister stated that the trespassing of the areas from LAC was first done by Indian troops. So China states that from the LAC area, the soldiers that invaded first was India, and then we took a replicated action of it. And whereas from when we speak of or when we hear from the Indian ministers or the Indian part, they say we don't accept this statement, and it is wrong because the China was one who first trespassed the LSE border. So first we'll see what are the things included in the article, and then we'll see what are the issues that come between India and China when it comes about LAC, line of actual control. So, first thing that India on Friday said it rejects the comments made by Chinese foreign minister, blaming it for trespassing across the line of actual control and causing last year's clash. If you remember last year, Galwan Valley, there was lot of news related to the clash between the troops in Galwan Valley, and in which actually 20 Indian soldiers lost their life, whereas if we speak of Chinese, there were 3 to 4 soldiers who lost their life from China. So China says that it was India's plan, or India started it. So on Friday, the Chinese minister spokesperson, in response to the question on whether there was a need of new border management protocol in the last week's LAC crisis, blames India for the sparking of the tension, because a question was asked to the spokesperson of Chinese minister whether you need a new protocol related to LAC. So they said yes, because India was the one who started it, and from there this question was arised, and Indian troops or Indian minister rejected the claim or rejected the blame. So, over the year, a series of treaties and agreements have signed by China and India on maintaining the peace and tranquility across LAC, which has played an important role in upholding the stability. If you want to know properly about the issues that come into LAC, in yesterday's lecture we discussed about the different petrol points where India and China's clash is there, or where China is invading. So you can refer that article yesterday's, so you can know about the disputes that come between India and China. So, 20 Indian soldiers and at least 4 Chinese troops died in the Kalwan clash that happened last year. The Ministry of External Affairs dismissed the comment, saying that rejects such statement. Our position with regard to the development last year along the LAC has been clear and consistent. It was the provocative behavior and the unilateral attempt of the Chinese troops. In all, the agreement resulted in the serious disturbance of peace and tranquility across the LAC. Now, Chinese envoy remark. So, what does the Chinese envoy states? While India has made a clear relations cannot continue as a normal in trade and areas related to the because of the dispute area, Chinese envoy to India, Sun Vyongdon, in remark delivered to a virtual track dialogue on Thursday and published by the Chinese embassy in New Delhi on the website, saying that both sides should place border issues on an appropriate position in bilateral relations seeks a fair, reasonable and mutual acceptance. So last, the Chinese envoy states that both the countries should take the initiative. They should have a proper meeting. They should discuss the issues and then come to a concluding point, and not just blame each other. Now, for example, if we speak of LOC,
कुछ दिन पहले ऑल्सो वी डिस्कस्ड दैट LOC में बहुत दिन से कोई सीज फायर ये वॉयलेशन ऑफ सीज फायर नहीं हुआ है। दोनों ही तरफ के ट्रुप्स एंड कमांडर्स का जो हमारे हैं चीफ, उनके प्रॉपर डिस्कशंस हो रहे हैं एंड इट इज़ ऑन अ पीस, प्रॉपर पीस मेंटेन हो रहा है। सेम चीज़ LAC में भी होना चाहिए सो दैट ये एक दूसरे में ब्लेम गेम ना खेला जाए। ठीक है, सो आर्टिकल इसी के लिए न्यूज़ में आया था कि चाइना इज क्लेमिंग इंडिया वॉज द वन, इंडिया इज क्लेमिंग वी वर नॉट द वन, इट वॉज द इलीगल बिहेवियर और इट वॉज द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय चाइनीज ट्रूप्स फर्स्ट। ठीक है, सो इस आर्टिकल के अंदर हम और एक चीज़ देख लेते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू द डिसएंगेजमेंट, कि ऐसे कौन से इश्यूज़ हैं जिसके वजह से चाइना और इंडिया के बीच में जो ये रिलेशन इश्यूज़ हो रहे हैं LAC पे इतने इश्यूज़ हो रहे हैं। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द इश्यूज़, सबसे पहला हमारा आ जाता है इट इज़ रिलेटेड टू द पार्शियल डिसएंगेजमेंट। पार्शियल डिसएंगेजमेंट, अब पार्शियल डिसएंगेजमेंट में आता क्या है, तो वो ये आता है कि अगर हम हमारे LAC की बात करें, ठीक है, LAC हमारा कहाँ से कहाँ तक है, तो हमारा नॉर्थ पैंगोंग सो से लेके कैलाश पैंगोंग सो साउथ की तरफ तक है। हमने कल ही देखा प्रॉपर ऐसा कटिंग है। ठीक है, जो हमारा ये हमने काराकोरम रेंजेस से लेके साउथ पैंगोंग सोक तक का प्रॉपर लाइन है। इसके बीच में भी प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं हो पाता है इंडिया और चाइना का, एक प्रॉपर डील पीस ट्रीटी साइन नहीं हो पाती, विच इज़ द वेरी फर्स्ट रीज़न कि हम पहली एंगेज मतलब प्रॉपर प्रोटोकॉल ही नहीं मेंटेन कर पा रहे दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ से पीस कैसे हो पाएगा। So the current disengagement is limited to the two places on this, that is North Pangong Tso में हमने 8 फिगर्स देखे थे। ठीक है, साउथ पैंगोंग तक हमारे वो पेट्रोलिंग स्टेशन जो हमने देखे, सो दैट इज़ द प्लेस द पार्शियल डिसएंगेजमेंट। हावेवर कुछ जगहें हैं मतलब हमारे लद्दाख बॉर्डर्स में, जैसे कि गोकरा हो गए, डेस्पांग हो गए, डेमचोक हो गए, ये सब जगह पर भी हमने कल ही देखा गोकरा को लेकर। ठीक है, गोकरा हो गया हमारा, देन हमारा दूसरा बताओ तो देपसांग एरिया, देन उसके बाद अगर मैं बोलूँ देमचोंग एरिया, ये सब हमारे कुछ पेट्रोलिंग स्टेशन हैं। यहाँ पर भी हमारे डिसएग्रीमेंट्स हैं चाइना और इंडिया के बीच में। उसके बाद डिसएंगेजमेंट के बाद नेक्स्ट हमारा आता है देपसांग प्लेन। अब देपसांग प्लेन पे क्या है, सो ये जो प्लेन है इसकी अगर हम बात करें, इसके इधर से एक प्रॉपर ये प्लेन के पास से एक प्रॉपर रोड पास होता है इसकी प्रॉक्सिमिटी में, जिसको हम दरबुंग श्योंग दौलत बेग ऑलदे रोड बोलते हैं। आई राइट इट फॉर यू। सो दरबुक श्योक दौलत बैग ऑल डे रोड, ये प्रॉपर एक रोड का नाम है। ठीक है, और ये रोड के साथ हमारा एक एयर स्ट्रिप है, वहाँ से कराकोरम पासिस है, जो कि कहीं ना कहीं इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू LAC चीज़ें। ठीक है, रिलेटेड टू LAC उधर भी हमने देखा कंटिन्यूसली चाइना का इन्वेजन है हमारे, क्योंकि कल ही हमने आर्टिकल में पढ़ा कि हमारे 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 10 से 13 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में चाइना अपना कंट्रोल या इन्वेजन करने की कोशिश कर रहा है, उसी में से ये कुछ एक एरिया है। तो कहीं ना कहीं देपसांग भी एक नेक्स्ट हमारी इशू बन रही है इंडिया चाइना के साथ, क्योंकि देपसांग एरिया हो गया, ये रोड हो गया, ये एयर स्ट्रिप्स हो गया, ये सब स्ट्रैटेजिकली इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर मेरे कंट्री बाउंड्रीज अगर है तो कंट्री की एज पॉइंट बाउंड्रीज तक वो जगह मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वो मेरी कंट्री का पार्ट है। एंड इफ़ यू ट्राई टू इन्वेड इट ऑब्वियसली दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू फॉर अस। तो देपसांग प्लेन जो है वो हमारे लिए एक इशू है। दूसरा जब मैंने ये बात किया ये रोड का, ठीक है, ये रोड प्रॉपर अगर मैं बात करूँ, ये रोड हमारा प्रॉपर इसमें आता है सियाचिन जो ग्लेशियर है हमारा, ये जो रोड की पासिंग है वो प्रॉपर सियाचिन ग्लेशियर के पास से आती है। और हमने हमारा ये है कि सियाचिन ग्लेशियर पे कंट्रोल रखना दोनों तरफ से इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज सियाचिन ग्लेशियर का टेम्परेचर वहाँ पर उतना देर रहना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। तो वहाँ पर कंट्रोल रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एंड देयरफॉर ये देखा जा रहा है कि ये रोड वे पे चाइना इन्वेड
किया जा रहा है, कंटिन्यूसली इन्वेड कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो देप्सांग प्लाटो है, यहाँ पर चाइना जो है इसका एडवांटेज उठा रहा है, ठीक है। स्टेटिंग की तिब्बत के पास वाला एरिया है, और तिब्बत हम जानते हैं पूरी तरह से चाइना के कंट्रोल में है। सो देप्सांग प्लाटो पे भी वो अपना कंट्रोल दिखा रहा है। सो दिस इज़ द सेकेंड इशू। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इशू जो आता है, विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इशू ऑफ इंडिया एंड चाइना, दैट इज़ अ प्रॉपर बफर जोन, ठीक है। ठीक है, इश्यूज क्या आ रहे हैं कि ये एक मतलब एक सजेशन है, एक सोल्यूशन है कि इफ़ वी मेंटेन अ प्रॉपर बफर जोन बिटवीन द एरियाज, तो शायद चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि हम अगर एलएसी की बात करें, सो अगर एलएसी यहाँ से पास होता है तो एक प्रॉपर बफर जोन बनाना चाहिए इंडिया और चाइना के बीच में, दोनों तरफ से, ताकि ये जगह खाली रहे और दोनों कंट्रीज अपने इतने तक रहे ताकि यहाँ से थोड़ा भी इन्वेजन ना हो। तो एक सोल्यूशन ये भी रह सकता है कि आप अगर बफर जोन बनाओगे तो लाइक चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बफर जोन कैन प्रोवाइड कम से कम सॉरी, हम ये बोल सकते हैं कि टेम्पररी बेसिस पे चीज़ें ठीक हो पाएंगी। बट यही चीज़ आता है कि पैंगोंग सोबे हमारे 8 फिंगर्स का इशू हो गया, ठीक है। वो सब चीज़ें इशूज जब तक सॉल्व नहीं हुए तो बफर जोन तो कहाँ से अब बना पाएंगे, ठीक है। सो देयरफॉर ये क्वेश्चन आता है कि अगर चाइना अपना लेवरेज कम करेगा लद्दाख की तरफ, तभी जाके हम बफर जोन्स बना पाएंगे इस एरिया में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इशू जो आता है दैट इज़ द डिस्ट्रस्ट, ठीक है। डिस्ट्रस्ट कैसे, अगर हम बोले डिस्ट्रस्ट इसके लिए बोल सकते हैं बिकॉज बहुत सारे हम लोग चाहे कितने भी कोशिश करें, कितने भी मीटिंग्स में हमारे रिप्रेजेंटेटिव इंडिया और चाइना से दे शो कि वी आर वेरी लाइक वी आर ओके, हमारे बीच में कोई भी तरह की एनिमी चीज़ें नहीं है, अंदर ही अंदर हमको पता है कि चाइना का हमारा रिलेशन कैसा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देर इज़ नॉट अ ट्रस्ट। जैसे कि अगर हम इंडिया रशिया बोले, ठीक है, इंडिया अफगानिस्तान तो लेट इट भी, इंडिया रशिया अगर हम बोले, इंडिया इजराइल बोले, तो ये सब कंट्रीज ऐसे विच हैव शोड अ ब्लाइंड फोल्डेड ट्रस्ट ऑन अ कंट्री, ठीक है। तो हम उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू चाइना ये चीज़ नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे रिसेंट हम देखें क्यों, क्वाड के रिलेटेड, ठीक है। चाइना कितना ज़्यादा मतलब एजिटेट करता है, स्टेटिंग इट इज़ एंटी चाइना एंड देयरफॉर दे डोंट सपोर्ट इट, ठीक है। सो द इवेंट्स ऑफ द लास्ट ईयर जो एक्चुअली हुए थे, इट एक्चुअली क्रिएटेड अ हर्डल एंड डिस्ट्रस्ट बिटवीन बोथ द कंट्रीज फर्दर। और एक चीज़ हम बोल सकते हैं कि चाइना को ये है कि इट इज़ अट्रैक्टिंग यूएस, ठीक है, एंड कॉड डायलॉग की उनको, मतलब चाइना को ये ईगरनेस है कि उधर क्या बात होता है। एंड देयरफॉर कितने बार आप सुनोगे कि चाइना रिप्रेजेंटेटिव्स ने बोला है कि क्वाड इज़ एन एंटी चाइनीज group and it always plan against it because quad में one of the important is the Pacific issue, the South China issue। तो उनको लगता है कि चाइना के अगेंस्ट हमेशा बात होती है। सो बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट्स के इश्यूज हैं विच इज़ क्रिएटिंग अ वी कैन से ट्रस्ट इश्यूज बिटवीन बोथ द कंट्री, ठीक है। और देयरफॉर पहले जब तक ये सारे इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे, इंडिया और चाइना का रिलेशन आई डोंट थिंक सो ठीक हो पाएगा। वे फॉरवर्ड में अगर मैं बात करूँ तो ये हो सकता है कि अगर हम प्रॉपर नेगोशिएशन करें तो हमारा देप्सांग प्लेन का इशू सॉल्व हो सकता है, ठीक है। देप्सांग के बाद अगर देप्सांग इशू सॉल्व हुआ, ठीक है, और ये कुछ इश्यूज अगर हमारे कम हुए क्वाड को लेके, मैरीटाइम डोमेन को लेके, शायद तब जाकर हमारी फोर्थ इशू डिस्ट्रस्ट की चीज़ ठीक हो सकती है। नेक्स्ट एक चीज़ आता है ताइवान। ताइवान के बारे में अगर मैं बताऊं, ताइवान जो कंट्री अगर हिस्ट्री हम देखें, ताइवान वॉज इनिशियली द पार्ट ऑफ चाइना ओनली, ठीक है, चाइना का ही था। बट ताइवान में चाइना की एक छोटी सी ट्राइब को वहाँ से निकाल करके एक आइलैंड पे जाके छोड़ दिया, जो कि उन्होंने जाके बाद में ताइवान जैसी कंट्री बनाई। बट ताइवान इज़ एक्चुअली अ प्लेइंग कार्ड ऑफ चाइना ओनली, चाइना जैसे बोलेगा ताइवान वैसे वैसे करता है। तो कहीं ना कहीं हमने रिसेंटली देखा था कुछ टाइम पहले कि इंडिया और ताइवान का रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, बिकॉज हमारे बहुत सारे कंपनीज के बीच में ट्रेड हो रहे थे, तो ये इशू एक ये भी आता है क्योंकि इंडिया और चाइना का रिलेशन जैसा भी हो, ताइवान के साथ इट इज़ बेनिफिटिंग इंडिया। तो अगर ताइवान अब चाइना की तरफ से चीज़ें करने लगा तो वो भी हमारे लिए इशू होगा, ठीक है। सो कुछ वे फॉरवर्ड इसके तरीके हो सकते हैं, तभी हो पाएंगे अगर प्रॉपर नेगोशिएशन हो पाएगा इसके रिलेटेड।
ठीक है। सो इस पे अगर आप चाहो मेंस आंसर राइटिंग भी कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू इंडिया चाइनाज रिलेशन रिलेटेड टू दी LAC। एंड इसमें अगर आपको लिखना है तो प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिख सकते हो कि LAC का कब से चीज़ें स्टार्ट हुई है, कौन से एरियाज़ हैं, कितने पेट्रोलिंग स्टेशंस हैं। उसके बाद आप उसमें इश्यूज बता सकते हो, उसके सल्यूशंस बता सकते हो, एंड वे फॉरवर्ड में यू कैन शो अ ब्राइटर फ्यूचर कि अगर हम नेगोशिएशन करेंगे तो चीज़ें शायद ठीक हो सके। ठीक है। So that was about India China LAC. Now we'll move to the next article. Next article states campaign launched for social accountability law. अब प्रीलिम्स में अगर ये आया कि कौन सी स्टेट ने सोशल अकाउंटेबिलिटी लॉ लाया है, कब से आया है, तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि सोशल अकाउंटेबिलिटी लॉ है क्या। सबसे पहली चीज़ सोशल अकाउंटेबिलिटी लॉ जो है ये हमारे जो स्टेट है राजस्थान वहाँ पे लाया गया था। इसकी फर्स्ट इनिशिएशन 2018 में की गई थी। 2018 में जब ये लाया गया तो इट स्टेटेड कि हम इसको ला के रखेंगे, हम हमारे स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे। सो पहले आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल क्या बताता है, एंड देन हम थोड़ा सा सोशल अकाउंटेबिलिटी लॉ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें है। So, a statewide campaign has been launched in Rajasthan for demanding the passage of social accountability law in the next assembly session. ये चीज़ बोला है कि next assembly session तक you have to pass this law ताकि ये proper एक act बन सके। ठीक है। So, to bring in legislation in 2018 elections manifesto, CM Ashok Gehlot had restricted his resolve to enact it in 2019 के स्पीच में उन्होंने बोला था कि हम ये ज़रूर लाएंगे। The state government is yet to take an action on the report submitted by the committee on Feb 2020। उस पर प्रॉपर अभी तक कोई एक्शन नहीं लाया गया ना। उसमें ये ड्राफ्ट भी दिया गया था, सोशल अकाउंटेबिलिटी लॉ का ड्राफ्ट भी उसके साथ दिया गया था, बट उसके अगेंस्ट कोई प्रॉपर एक्शन लिया नहीं गया था। सो द कमिटी हेडेड बाय द फॉर्मर सिविल सर्वेंट मिस्टर राम Lubaya strongly emphasized the need for the legal framework to guarantee the accountability of the citizens, highlighting the limitations of the administrative system. So one of the former civil servant का ये बोलना है कि इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फ्रेमवर्क में लाना बहुत ज़रूरी है ताकि एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रह सके, हमारे इंडियन सिटीजन्स जो हैं वो गवर्नमेंट पे ट्रस्ट कर पाए, बिकॉज दे कैन नो कि चल क्या रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव के फ्लॉज क्या हैं, किधर हमें काम करने की ज़रूरत है। नाउ राइट बेस्ड अप्रोच जो है वो हमारा प्रॉपर ये लॉ को बता रहा है। तो हम पहले सोशल अकाउंटेबिलिटी लॉ के बारे में पढ़ते हैं कि अकाउंटेबिलिटी लॉ क्या चीज़ है, ठीक है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एंड सो ऑन। सो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इज टू सीक द अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक फंक्शनिंग। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, मतलब कि जितने भी पब्लिक फंक्शनिंग्स या अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, वो लोग अपना डिसीजंस किस बेसिस पे ले रहे हैं या फिर क्या डिसीजंस ले रहे हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी सिटीजन्स को रहनी चाहिए। ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट अ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज्ड एंड पार्टिसिपेटिव अप्रोच। ठीक है, डेमोक्रेटिव का मतलब क्या है, टू वर्क फॉर द पीपल। एग्जैक्टली। सो ऐसी तरह का ये अगर अकॉर्डिंग टू दिस बिल ये क्या होगा कि आप जो भी फंक्शंस लोगे, जो भी आप डिसीजंस लोगे, वो हमारे पीपल को ध्यान में रख के होना चाहिए। दे शुड बी मोर सेंटर्ड टू द सिटीजन्स, नॉट टू द पीपल इन फेवर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इन राजस्थान सिटी कोई भी एक एक्ट ले लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन के रिलेटेड है, तो आप राजस्थान की एजुकेशन को ध्यान में देख के, वहाँ के कितने बच्चों को क्या पढ़ाई मिल रहा है उसको ध्यान में देख के लॉ लाओ, ना कि आप पार्लियामेंट के लोगों को ध्यान में देख के लॉ लाओ। तो डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइज्ड का मतलब वही होता है। उसके बाद थर्ड ऑब्जेक्टिव अगर मैं बात करूँ, टू इनिशिएट द मॉनिटरिंग of the programs and policies, citizens report card and social audit।
ये सिटीजन ये नहीं बोल रहा कि आप हर चीज़ हमारे हिसाब से देखो, बट एटलीस्ट आप जो चीज़ें डिसीजंस ले रहे हो, जो रिपोर्ट्स निकाल रहे हो, वो हमें पता रहना चाहिए, हमें अवेयरनेस रहना चाहिए कि ये रिपोर्ट निकाला, ये चीज़ इस चीज़ के लिए किया गया था। बिकॉज एट लास्ट अगर हम इंडियन कंट्री की बात करें, इंडिया की बेसिस की बात करें, इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट वर्क्स फॉर द पीपल। अगर लोगों को ही नहीं पता कि उनके लिए क्या किया जा रहा है तो फ़ायदा क्या उस चीज़ का। सो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे सोशल अकाउंटेबिलिटी लॉ के। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इसके की प्रोविजंस, कि हमारा ये एक्ट जो है, ये हमारा ये जो लॉ है, ये क्या हाईलाइट करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, अगर ये लॉ अगर पास हुआ और ये एक्ट बना, एक प्रॉपर एंड एक बॉडी बनाई जाएगी, ठीक है, जो कि हमारे जितने भी बॉडीज़ हैं राजस्थान के जो कि गवर्नमेंट के अंडर हैं, ठीक है, हाई कोर्ट हो गया, गवर्नर हो गया, गवर्नमेंट बॉडी, ऐसे कोई भी बॉडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बनाई गई है राजस्थान में, वो सब को, ठीक है, वो सारी बॉडीज़ को एक प्रॉपर कंसेंट रखना पड़ेगा कि वो लोग की वर्किंग क्या कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है कि इफ़ आई वांट टू नो अबाउट द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, इट्स माय राइट, आई कैन नो दैट, ठीक है। सिमिलर वे में ये भी एक अकाउंटेबिलिटी है कि सिटीजन अकाउंटेबल टू नो द इंफॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। सेकेंड इज अबाउट पेनल्टीज। अब पेनल्टीज क्या होगा, तो पेनल्टीज इज बेसिकली, अगर इसमें ऐसा है कि अगर कोई भी बॉडी, जितने भी बॉडीज़ के मैंने नाम लिए, अगर कोई भी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है तो उसकी पेनल्टी किसको बेयर करनी पड़ेगी, उसकी पेनल्टी जो है वो GRO को बेयर करनी पड़ेगी। GRO इज ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि कोई लोकल पुलिस स्टेशन है, वहाँ के पुलिस वालों ने जो उनकी जो ड्यूटी थी उनको डिलीवर करने में फेल हो गए, वो अपना रूल या अपनी पॉलिसीज़ के हिसाब से काम नहीं कर पाए, तो इसके रेपोकेशंस किसको फेस करने पड़ेंगे, GRO को फेस करने पड़ेंगे। इसी बहाने जो ग्रीवियन रिड्रेसल ऑफिसर होंगे उनके अंदर डर रहेगा कि कुछ भी हुआ तो मुझे देखना पड़ेगा, तो इससे बहाने क्या होगा कि चीज़ें और अच्छी होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अगर स्कूल्स में बात करते थे कि टीचर बोलते थे कि अगर कुछ भी हुआ तो मॉनिटर को देखना पड़ेगा, तो मॉनिटर का काम क्या रहता था कि सबको चुप कराओ, आवाज़ ना हो। सो एक इनडायरेक्ट तरीका है ताकि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शनिंग हो पाए। देन इसमें ये भी चीज़ बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस बॉडी एक प्रॉपर मैकेनिज्म सेटअप होने वाला है, ठीक है, जो कि पंचायत लेवल से लेके अपर लेवल तक रहेगा, जिसमें कि सारी सोशल ऑडिट्स हुए, पब्लिक इंफॉर्मेशन हुए, उसको पब्लिकेशंस होगा ताकि लोगों को पता हो। सो ये 3 चीज़ें हाईलाइटेड है या फिर की पॉइंट्स हैं हमारे सोशल अकाउंटेबिलिटी लॉ को, ठीक है। सो कभी भी अगर ये टर्म हुआ, अगर आंसर राइटिंग में हुआ सोशल अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है, तो यू शुड नो सोशल अकाउंटेबिलिटी जो है इट इज़ बेसिकली एन एक्शन दैट इज़ इनिशिएटेड बाय द ग्रुप ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ सिटीजन एक एक्शन लेते हैं, इट इज़ इनिशिएटेड बाय द ग्रुप ऑफ सिटीजन्स to have a control over the public offices, politicians and all the government officers, ताकि उनका परफॉर्मेंस कैसा है, to have a view on their performance, on their conducts, how they are able to deliver their services, ठीक है। और एक चीज़, सोशल अकाउंटेबिलिटी 4 पिलर्स पे वर्क करेगा। क्या 4 पिलर्स है, सबसे पहला जो है दैट इज़ द केपेबल सिटीजन, ठीक है। फर्स्ट वन इज द केपेबल सिटीजन, सेकेंड वन इज द एनवायरमेंट, एनेबलिंग एनवायरमेंट जिसमें कि प्रॉपर वर्किंग हो पाए, ठीक है। थर्ड इज द कल्चरल अप्रोप्रिएशन, प्रॉपर कल्चरल एनवायरमेंट मिले फॉर इट्स वर्किंग, एंड फोर्थ इज द एक्सेस टू ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो दिस आर द 4 पिलर्स ऑफ सोशल अकाउंटेबिलिटी लॉ, ठीक है। सो आई थिंक सो ये आर्टिकल समझा होगा आप लोग को। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। The next article states that MOD strikes 22,000 crore deals with Airbus। इसके रिलेटेड आर्टिकल कुछ दिन पहले भी हमने पढ़ा था कि 46 एवरो मैकेनिज्म बनाया जाएगा, जिसमें से हमने देखा था 16 जो है वो हमें एयरबस बना के देगा। एयरबस इज़ अ डिफेंस सिस्टम ऑफ स्पेन, और बाकी जो ये है
30 जो है, सॉरी 56 बनाएंगे, आई एम रियली सॉरी, 56 एवरोज बनाने वाला है, जिसमें से 16 एयरबस बनाएगा, 40 इंडिया इंडिजिनियसली बनाएगा, जिसको बात किया था कि ट्रीटी साइन होने के बाद प्रॉपर 10 ईयर्स के अंदर बनाया जाएगा और प्रॉपर 40 मंथ्स के अंदर दिया जाएगा। उसी के रिलेटेड ये आर्टिकल आया है। सो टू अपडेट योर सेल्फ, मैंने ये आर्टिकल इसमें इंक्लूड किया है। तो ये आर्टिकल एक्चुअली बता क्या रहा है कि उन्होंने जो जो डील था वो साइन कर लिया है, एंड करेंटली जो है उसके रिलेटेड दे हैव पास्ड एन अमाउंट ऑफ 22,000 करोड़। ठीक है, 22,000 करोड़ का एक डील मतलब अमाउंट पास किया है उनको। ठीक है, जिस पे उन्होंने वो अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो ये आर्टिकल जो था, पहले हम आर्टिकल का अंदर का पढ़ लेते हैं, मैटर क्या बता रहा है, देन हम जो हमारा मैकेनिज्म है, जो एवरेज जो एक्चुअल एयरक्राफ्ट बन रहा है, ठीक है, जिसको हमने देखा था बाय द नेम ऑफ 295, तो उसके बारे में भी थोड़ा जान लेंगे। सो द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑन फ्राइडे साइंड एन एस्टिमेशन ऑफ 22 करोड़ डील विथ एयरबस डिफेंस स्पेस एयरक्राफ्ट, स्पेन का है ये मैकेनिज्म फॉर द 56, आई सेड 56 C9-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टू रीप्लेस दी 4 एजिंग। एक्चुअली इंडियन डिफेंस की अगर हम बात करें तो देयर वाज सच 56 मैकेनिज्म जो बहुत पुराने हो चुके थे, बिकॉज इंडिपेंडेंस के बाद उनको बनाया था और तब से अब तक यूज़ हो रहा था, तो उनको प्रॉपर रिप्लेस करने के लिए एक नई मैकेनिज्म की ज़रूरत थी, जिसके वजह से ये C295 MW लाया जा रहा है। So this is the first project of kind in which military aircraft will be manufactured. ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन प्राइवेट कंपनी, इसका प्रॉपर बीडिंग हुआ था, तो टाटा जो हमारे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है वो प्रॉपर मैकेनिज्म प्रोवाइड करेंगे डीआरडीओ के अंदर। ठीक है, सो रतन टाटाज इनिशिएटिव उसमें वही हुआ कि उन्होंने उस चीज़ को लिया। उन्होंने क्या बोला है कि it has been since 11 years the Tata Group decided to partners with Airbus for programs. This was one of the last project that former chairman Tata Sons Ratan helped to put together. ठीक है, सो ये इनिशिएशन है। अब थोड़ा सा इस आर्टिकल में प्रीलियम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना ज़रूरी है कि C295 के बारे में। ठीक है, कि बाय चांस अगर प्रीलियम्स के रिलेटेड उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए तो यू कैन आंसर इट। So the C295 or C295 is a new generation airlifter with a light advanced system है। ठीक है, और it is a robust and reliable but also highly versatile in the terms of different missions. क्यों versatile बोल सकते हैं, because it is a multi-role. It is a multi-role mechanism. It has a multi-role mechanism. It is fully certified and it can routinely operate for day and night. Continuously वो day and night की functioning कर सकता है। Desert से लेके maritime environment तक को वो झेल सकता है। C925 जो है वो सभी तरह के environment को suitable बनाया गया है। So with the new C295W version equipped with Vigilant, ठीक है, इट हैज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मोर देन अ पे लोड। ठीक है, एक लॉन्ग डिस्टेंस तक का जर्नी कर सकता है, हॉट एंड हाई क्लाइमेट जो भी दो। ठीक है, एंड रिजल्टिंग ऑफ द फ्यूल कंजम्पशन सेविंग्स अराउंड 4%। ठीक है, एंड इंक्रीज द सेफ्टी मार्जिन ऑफ द माउंटेनियस रीजन। So today's armed force have increasing the demand of various transport missions and therefore it जो हमारा C295 है उसको उस तरीके से बनाया जा रहा है। So एयरबस अगर आया तो यू शुड नो एयरबस किस रिलेटेड आ रहा है। C295 आया तो आपको जानना ज़रूरी है कि क्यों आया है और कितने ऐसे बन रहे हैं और इंडिया कितना उसमें से बना रहा है। कुछ चीज़ें अगर स्टेटमेंट्स में आए तो यू शुड नो अबाउट इट। आई होप सो आज की आर्टिकल आपको क्लियरली समझी होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।